we are here for the Mahindra solicitation ceremony and I welcome you all for the event. What's your name? I'm Roli Yadav. In which exam have you been selected? I've been selected in IBPS PO, Central Bank of India. Okay, so what's your message for the students who are preparing in Mahindra's particular? I think my message will be very simple, that you have to have an intrinsic motivation that will help you to be motivated throughout the preparation, because it gets very depressing when we don't get the desired result that we want, but we have to believe in ourselves and just keep on preparing and just keep on giving the mock test, and at the end it will surely give you the desired result. Thank you. What's your name? Divyansh Awasthi. In which exam have you been selected? RRB clerk and IPS clerk. Okay, so tell me something that helped you a lot through your preparation journey. The one thing that helped me a lot through my preparation journey was the rigorous practice through mock test, Mahindra's mock test and Mahindra's sectional test, and the doubts, the PSS that Mahindra's teachers have given us, and we can solve different doubts regarding reasoning or GK or the subject which we find difficult, and the analysis, the thorough analysis of the mocks which teachers provide and the content team provides. Okay, so is there anything that you can tell to the students who are preparing for the examination? The only thing I like to say that separate the emotional part from the practical part, the logical part of the examination. Don't be emotional, just focus on the numbers, how much cutoff you have to clear, and just focus on your one seat, because there is no rank, there is just one seat you have to secure. Thank you. Hello, what's your name? My name is Roshni Singh Chauhan. Okay, Roshni, in which exam have you been selected? I have been selected in IBPS SO as a specialist officer in IT in Bank of Maharashtra. Okay, so tell me something that helped you a lot during your journey in particularly Mahindra's. The faculty like Jay sir for reasoning and Anjan sir for maths. I was in Kapurthala branch, so it was really very helpful. All the doubts that I was having, they used to clear it, and it helped me a lot. Any message for the students who are preparing? For the students, I would like to say that they should be consistent with the studies, and they should have belief in themselves, and then the hard work, that is enough. I think that will do. थैंक यू. आपका नाम क्या है? जानवी. और किस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है आपका? IBPS क्लर्क में. ईयर 2023. अच्छा, तो क्या एडवाइस रहेगी आपको उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर करें महिंद्राज में? Mahindras is a very reputed institution, and बहुत सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए, एंड आपको गाइडेंस तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत रेप्यूटेड टीचर्स हैं यहाँ पे. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सबसे फेवरेट टीचर तो हैं शिवा सर. उनकी गाइडेंस प्लस उनका मोटिवेशन मेरे जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है. Thank you. What's your name? Abhijit Asthana. Okay, in which exam have you been selected? Ma'am, IBPS PO, Central Bank of India. Okay. So what was that one thing that helped you a lot throughout your journey, and what are your views about Mahindras particularly? मैम मेरे हिसाब से अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते हैं और अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाएंगे. अच्छा, और जो बच्चे प्रिपेयर करें उनके लिए कोई एडवाइस आपके लिए? जी, एडवाइस यही है कि आप अगर अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं और बीच में ब्रेक नहीं करते हैं अगर अपनी प्रिपरेशन को, तो आप जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं. तो कंसिस्टेंसी इज द की. थैंक यू. व्हाट्स योर नेम? अभय कुमार. इन विच एग्जाम हैव यू बीन सिलेक्टेड? SSCGL 2021 बैच. ओके, सो आपके क्या व्यूज़ हैं महिंद्रास के बारे में? क्या वो चीज़ है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया थ्रू आउट योर जर्नी? I actually feel like कि best thing about Mahindra is their staff members combined with PSS and their ST schedules. This thing combined give a beautiful perspective to student journey. अच्छा, तो एक और चीज़ की एसएससी के एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंसी लोग कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट की है. आपका क्या मैसेज जाएगा टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग? My message simple, just enjoy the process. The process is much more important than the result. SSC is an easy examinations compared to bank. You have just pre and mains, no more written paper. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको कहाँ स्कोर करना है, आपको किस में अपना बेस्ट करना है, किस में आप मार्जिन ले सकते हैं, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. इस ST लगाना, टाइम के अंदर ख़त्म करना सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप पेपर टाइम में ख़त्म कर रहे हो तो आप पेपर कर सकते हो, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो.
मेन चीज़ आपकी रहती है कि आप इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स इस पर बहुत अच्छा कमांड रखो। जीएस आपकी ऐसी चीज़ है जो बोनस होती है, जो क्रीम ऑन द टॉप होती है हमेशा। तो मेक श्योर कि आप पूरा सिलेबस कवर करो, एसटी लगाओ और एंजॉय करो प्रोसेस को। आप एंजॉय करेंगे, जल्दी करेंगे आप। Thank you so much. What's your name? My name is Khushbu Gupta, And in which exam have you been selected? IBPS clerk, Union Bank. अच्छा, तो आपकी पोस्टिंग हो गई है। आप मुझे ये बताओ दैट व्हाट वाज दैट गाइडिंग फोर्स दैट हेल्प यू अ लॉट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, पर्टिकुलरली महिंद्रास के क्या व्यूज़ है? पर्टिकुलरली महिंद्रा के रिव्यूज़ यही है, दे आर बेस्ट टीचर्स अवेलेबल। उन्हीं की वजह से ही मेरी जॉब इतनी जल्दी और इतने कम टाइम में मैं अचीव किया है मैंने, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव है, नॉट फॉर द जस्ट क्लास टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्लास टाइम के बाद भी अगर आप नीड में हो तो वो आपकी हेल्प करते हैं। तो पीएसएस ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है? बहुत ज़्यादा, हाँ। अच्छा, कई बच्चों के व्यू होते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ होती है जब आप बैंक की प्रिपरेशन करते हो, तो क्या उसमें आपकी जर्नी में हेल्प हुई कुछ? हाँ, एक्चुअली इंग्लिश टफ होती है, बट टीचर्स के गाइडेंस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप आप जैसे ही जो वो बोल रहे हैं, अगर आपने उसे फॉलो किया है ना, तो कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है। आराम से आप अगर कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन्ड है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका जो प्रिपेयर कर रहे हैं? मैंने यहाँ पे मेरे कुछ टीचर्स ऐसे स्पेसिफिक टीचर्स से मैंने सीखा है कि आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए और उसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेडलाइन होना चाहिए कि इस डेडलाइन के अंदर ही मुझे वो टारगेट कंप्लीट करनी है। अगर आपने ये दो चीज़ फॉलो की है ना तो बहुत आराम से आपकी जॉब लग सकती है। थैंक यू। हेलो, व्हाट्स योर नेम? My name is Arun Kumar. In which exam have you been selected? Ma'am, I have selected in RRB clerk, IBPS PO and IBPS clerk. तो कैसी रही आपकी जर्नी महिंद्रास कपूरथला ब्रांच में? मैम, जर्नी स्टार्टिंग से थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, जैसे हर एस्पिरेंट की होती है। खासकर क्वांट में ज़्यादा प्रॉब्लम रही, पर रेगुलर क्लास करते रहे। जैसा अंजन सर पढ़ाते थे मुझे, तो जैसा अंजन सर ने गाइड किया कि मॉक टेस्ट देते रहो, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी, तो स्टेप बाय स्टेप बताते रहे, मैं उसको फॉलो करता रहा, तो उससे काफ़ी हेल्प मिला। अच्छा, बच्चों के लिए आपका क्या एक मैसेज रहेगा? मैम, बच्चों के लिए मैसेज ये रहेगा कि डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोग शेड्यूल बनाते हैं, सुबह पूरे दिन का शेड्यूल बना लिया, तो अगर वो पूरा नहीं होता तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर अगले दिन शेड्यूल नहीं बनाते। तो ऐसा नहीं करना, डिसिप्लिन रहना। अगर आज नहीं हुआ तो कल ज़रूर हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? My name is Saksham Singh. और किस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हुआ है आपका? I got selected in IBPS clerk and got Indian Bank. अच्छा, तो क्या आपका एक मैसेज आएगा स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर करें, और आपकी पर्टिकुलरली जर्नी कैसी रही महिंद्रास? महिंद्रास में मेरी जर्नी बहुत मेमोरेबल रही, और स्टार्टिंग के डेज़ में मुझे भी काफ़ी टफनेस लग रही थी, तो लेकिन कुछ टीचर्स थे, उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया। मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि स्टार्टिंग के डेज़ थोड़े टफ रहेंगे, लेकिन उसको आप अगर टैकल कर लेते हैं तो आगे की जर्नी अच्छी रहेगी और सिलेक्शन भी मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या एक फैक्टर होता है जो आपको डेडिकेटेड रखता है थ्रू आउट द एग्ज़ाम कि आप प्रिपेयर करते रहें डिस्पाइट द फेलियर्स? वो रिज़ल्ट में जब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस दिखता है तो सबको वही चाहिए होता है, और स्टार्टिंग के डेज़ में मुझे थैंक यू दिखता था, लेकिन लास्ट में जब कॉन्ग्रेचुलेशन लगा तो लगा हाँ मैंने कुछ कर दिया। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? ताराकांत। इन विच एग्जाम हैव यू बीन सिलेक्टेड? IBPS PO, बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, तो आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? जी, स्पेशली माय फादर। और महिंद्रास में जो आपकी जर्नी रही वो कैसी रही, क्या प्रिपरेशन का प्रोसेस था, एंड व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट हेल्प यू थ्रू आउट? जी मैम, मेरा जर्नी इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब मैं आया था, इवन बता सकता हूँ आपको, मोबाइल नंबर भी इंग्लिश में सही से बता नहीं पा रहा था, और उसके बाद यहाँ तक पहुँचने का आप समझ सकते हैं। अच्छा, तो सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है? व्हाट वाज दैट वन थिंग, क्या चीज़ थी जिसने आपको इतना हेल्प किया कि फ्रॉम ज़ीरो टू दी स्टार्ट अब आप यहाँ पर हैं आफ्टर दी सिलेक्शन एंड दी रिक्रूटमेंट? जी मैम, ये इसका पूरा क्रेडिट मैं टीचर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि मुझको बिल्कुल आइडिया नहीं था, यहाँ तक कि सिलेबस के वक्त भी पता नहीं था बैंक का। अच्छा, बच्चों के लिए क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं? बस लगे रहो और कुछ नहीं, बस लगे रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो, टीचर्स पे भरोसा रखो, और इसी समय जितना डिस्ट्रैक्शन है यूट्यूब पे वो सब पे थोड़ा कम फोकस करें, बाकी फाइनली सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? काम्या कीर्ति। और किस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है आपका? IBPS क्लर्क हुआ है अभी। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट वाज दैट गाइडिंग फोर्स दैट केप्ट यू वेल फॉर द एग्जामिनेशन, और उसमें महिंद्रास का पर्टिकुलरली क्या रोल था? Mahindra played a very big role in my selection. The faculty of Mahindra, especially Anurag sir, their unwavering support, their guidance, it was the key to the success. अच्छा, तो क्या आपको लगता है वो की पॉइंट्स है जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन?
कंसिस्टेंसी एंड मॉक टेस्ट एंड उनके एनालिसिस, दैट्स इट। अच्छा, तो ऐसा पर्टिकुलरली महिंद्राज कपूरथला ब्रांच में आपको क्या सपोर्ट मिला, क्या हेल्प मिली जिससे की वजह से आज आप यहाँ आए? आई मीन फैकल्टी जो सब्जेक्ट्स पढ़ाती है, द फैकल्टी इज़ एक्सेलेंट। हमें जो भी डाउट होता था दे ऑलवेज हेल्प अस, कि जो भी जैसा भी क्वेश्चन फंस रहा और नहीं समझ में आ रहा है दे एक्सप्लेन टू अस एन नंबर ऑफ टाइम्स, कि मतलब जब तक समझ में नहीं आएगा दे हेल्प यू कि हाँ दिस इज़ हाउ यू डू इट, दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। एंड ऐसे कभी कभी एग्ज़ाम के बीच में लगता भी है कि आई डोंट थिंक आई कैन डू इट, तो उस टाइम पे एज अ फैकल्टी इट मोटिवेट्स अस एज वेल कि नहीं, यू आर केपेबल, जस्ट कीप, डोंट गिव अप, देते रहो, एग्जाम निकल जाएगा, डोंट वरी। दैट वाज अ वेरी बिग फैक्टर इन द सक्सेस। No matter what, but keep on going. That's the thing. Yeah. Okay. Thank you so much. Hello. In which exam have you been selected? मैम मेरा ICICI बैंक में हुआ है एज अ डेप्यूटी मैनेजर। अच्छा, तो क्या आपके व्यूज़ है अबाउट महिंद्राज? महिंद्राज व्यू मैम ये है कि मतलब अपने यहाँ का जो फैकल्टी है महिंद्रा ब्रांच का, चूँकि मैं कपूरथला ब्रांच से हूँ, तो वहाँ की फैकल्टी बहुत सही है मैम। मतलब वो पूरा डेडिकेशन के साथ जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, और प्लस मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क देते हैं कि आप इसको कंप्लीट करके आइए अगले दिन, और प्लस उसका अगले दिन एनालिसिस भी करवाते हैं कि आपने जो आपको हमने वर्क दिया था उसको आपने कंप्लीट किया या नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं में मुझे लगता है कि बच्चे के सिलेक्शन में एक मील का पत्थर के समान जो है सक्सेस का रोल निभाता है। अच्छा, और जो स्पीड टेस्ट हैं पर्टिकुलरली, क्या उनसे कोई हेल्प मिलती है पर्टिकुलरली? सारा खेल तो स्पीड टेस्ट का ही है मैम, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि देखिए आप पढ़ते कितने भी रहिए, जब तक आप स्पीड टेस्ट नहीं देते तब तक पता नहीं चलता है ना कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो स्पीड टेस्ट बहुत ज़रूरी है मैम। हम तो कहते हैं कि बच्चा अगर ग्रुप में उसमें एडमिशन लेता है मैम, तो उससे हम तो कहते हैं मैम कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि उससे मैक्सिमम 1 या 2 हफ्ते क्लास करने के बाद उसको स्पीड टेस्ट कंटिन्यू कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो 2 हफ्ता जैसे पढ़ा हुआ है, तो उसको 2 हफ्ते वाला डेटा जो है जितना उसके पास कलेक्ट हो चुका है उसके आधार पर वो टेस्ट देना स्टार्ट कर देगा, तो उससे कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप होने लगता है। तो मतलब जो मॉक टेस्ट है, जो स्पीड टेस्ट है, वो सारे ही स्टूडेंट्स को बिगनिंग से देने चाहिए? नहीं, शुरुआत से नहीं देने चाहिए, लेकिन वही बताया ना कि आप 15 दिन 20 दिन क्लास करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए। क्योंकि अच्छा, बच्चों के लिए क्या मैसेज आएगा आपका? मैम मैसेज वही है कि आप बता तो रहे हैं कि आप क्लास करिए 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम 1 महीने ले लीजिए, उसके बाद अपना स्पीड टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, आप जितना पढ़े रहेंगे 15 दिन 20 दिन में, उसके आधार पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। देखिए जहाँ तो मुझे लगता है ना कि स्पीड टेस्ट में बच्चा क्यों नहीं जाता, उसको लगता है कि 100 क्वेश्चन है, उसमें से मुझे 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी 90 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि उसको ये करना चाहिए कि 100 में से जितना क्वेश्चन उसको आ रहा है आप उतना करो ना, और उसमें देखो कि आप जैसे मान लीजिए 100 में से 10 क्वेश्चन उसने किया, तो उसको ये नोटिस नहीं करना चाहिए कि 100 में हमने केवल 10 क्वेश्चन किए। उसको नोटिस ये करना चाहिए कि अगर मैंने 100 में 10 किए हैं तो 10 में मेरा कितना सही हो रहा है, और फिर उसी के आधार पे उसको एनालिसिस करते रहिए, और फिर उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, व्हाट्स योर नेम? Ma'am, my name is Shalini Verma. And in which exam have you been qualified? Ma'am, IBPS PO and IBPS Clerk. Okay, so Shalini, tell me something about Mahindras. आपको किस चीज़ में ने मोटिवेट किया, particularly Mahindras? मैम मेरे 1-2 फ्रेंड ने भी महिंद्रा से ही पढ़ाई की थी और उनका भी सिलेक्शन हुआ, तो उन्हीं को देख के मैं भी मोटिवेट हुई थी, और मैंने स्टार्टिंग से महिंद्रा ही ज्वाइन की, उसके सिवा मैंने और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन किया था। और मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है इंटरव्यू के मॉक में, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिए हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो और मैंने मैक बैच भी की थी, उसका भी मुझे मेंस के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। तो मतलब एडवांस क्लासेस ने भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और उसके साथ साथ एक महिंद्रा सक्सेस क्लब भी है इन दी ब्रांच, सो हैज़ इट हेल्प यू? मैम मैंने वो नहीं ज्वाइन किया था, मुझे नहीं पता। अच्छा, ओके। एंड व्हाट इज़ योर मैसेज अबाउट द स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं? क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सभी की एग्ज़ाम क्लियर हो जाती है, या और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए, या एक सेटबैक के साथ पीछे हट जाना चाहिए? मैम हर एक इंसान का तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बट हाँ, इम्पॉसिबल भी नहीं है, पर अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाते हैं तो आपको डबल फोर्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा नहीं है, अगर कोई भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका सिलेक्शन फॉर श्योर हो ही जाना है, आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। अच्छा शालिनी, एक और चीज़ कि कई बच्चे
से कहते हैं कि ना बैंक एग्जामिनेशन में इंग्लिश जो है दैट इज़ अ टीडियस टास्क टू क्रैक. सो इज़ इट सो कि ऐसा है कि हाँ जो हिंदी मीडियम से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, या ऐसा है कि विद थरो कंसिस्टेंसी हो सकता है कि हो जाए? मैम कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है. अगर अच्छे से प्रिपरेशन की जाएगी तो हर एक चीज़ पॉसिबल है. मैंने भी अपने ग्रेजुएशन में बीए ही किया है, लेकिन हाँ मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है तो मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं हुई है. पर एक मिसकंसेप्शन भी है कि बीए वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता. ये मिसकंसेप्शन तो मैं तोड़ रही हूँ क्योंकि मेरा हुआ है. और जो भी हैं बीए वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो फॉर श्योर सिलेक्शन होना है. कोई भी ऐसी बात नहीं है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में अच्छा सब्जेक्ट नहीं रहा. वैसे बीए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पर अगर किसी के माइंड में ये मिसकंसेप्शन है तो उसको प्लीज़ दूर करें. और चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड रहा हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, हर चीज़ डिपेंड करती है आपकी कंसिस्टेंसी पे. अगर आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा. Thank you so much. What's your name? My name is Shreya Singh. In which exam have you been selected? I am selected in IBPS PO Canara Bank. आपकी जर्नी में महिंद्रास का क्या रोल था? मैम महिंद्रा की फैकल्टी ने मेरे बेस इम्प्रूवमेंट से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक प्रॉपर सपोर्ट दिया है. अच्छा, और यहाँ जो एसटीज़ होती हैं उनका क्या हेल्प, क्या वो एक्चुअली वर्थ इट थी फॉर द एग्जामिनेशन दैट यू हैव क्रैक? बिल्कुल मैम, उन्होंने मुझे इमोशनल सपोर्ट भी दिया और प्रॉपर बैकअप दिया. मेरे पेरेंट्स के साथ साथ मैं सारी फैकल्टीज़ को भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे प्रॉपर सपोर्ट दिया. बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आएगा आपका? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा है, तो वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पे भी फोकस करें. Thank you. Hello ma'am, my name is Priyanka. Okay. And in which exam have you been qualified? Ma'am, I have qualified 2 exams. First is SBI Apprentice and second is IBPS SO Specialist Officer Scale 1. Okay. महिंद्रास का क्या contribution था आपकी preparation journey में? मैम महिंद्रास का कंट्रीब्यूशन ये था कि जब मैंने डिसाइड करा कि मुझे बैंकिंग करनी है तो मैंने आँख बंद करके महिंद्रा ज्वाइन कर लिया. एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है. देन मैंने प्रीलिम्स की जो क्लास होती है, रेगुलर क्लास, वो करा. तो बेसिकली एक मेरा वहाँ से जो एक बिगिनिंग होती है वहीं से स्टार्ट होती है. एंड महिंद्रा बहुत हेल्पफुल था. ओके. एंड क्या मेंस की प्रिपरेशन में भी हेल्पफुल रहा महिंद्रास? क्या एडवांस क्लासेस और जो स्पीड टेस्ट होते हैं, हैव दे हेल्प यू? मैम डेफिनेटली, मैंने यहाँ का जो मैथ बैच होता है वो लिया था, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था. इंग्लिश, मैथ्स एंड करंट अफेयर्स. एंड इसके अलावा एसटी भी बहुत हेल्पफुल था क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट कर देता है कि आप कहाँ लाई करते हो, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक आती है यहाँ पे. तो यस डेफिनेटली. ओके. आपने 2 बैंकिंग के एग्जामिनेशंस क्रैक किए और कई बार बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं थोड़ा प्रिपेयर करने के बाद, तो पर्टिकुलरली उन एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज आएगा आपका? हाँ, मेरा तो मैसेज बस यही है कि गोल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. एंड इसके बाद परसिवरेंस रखना है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो लाइन से होता है कि डेफिनेटली हो सकता है कि एग्ज़ाम्स क्वालिफाई ना हो. देन उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन लाइफ के साथ हो जाएगा. बस हमें गिव अप नहीं करना है. थैंक यू सो मच. हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड. आप बताइए आपका नेम क्या है और एंड विच एग्जाम हैव यू क्रैक्ड? My name is Vishakha Tiwari and I have cracked SBI PO and IBPS PO. Okay, so what was and how was your particularly journey in Mahindras? My journey was like a roller coaster ride, I would say. There were so many personal issues also going on, but the interview session which I had at the Mahindra was a stress buster for me. Badhua sir, Karnataka sir, all the teachers, all the IBM member, Navneet sir, they made sure that I forget whatever was going on at my home and just focus on my upcoming exams. And also on 1st of January I lost IBPS RRB PO by a fraction of 1.24 marks. So I was shattered at that point of moment. But Navneet sir made sure that I continue my preparation, continue for the interview process, and all the teachers made sure that I give my best in my upcoming interviews. And what would be your message to the students who are preparing for the examination? My only message would be that just believe in yourself and know why you are starting the preparation. Like, there will be days when you will want to quit on the preparation, but your why will make sure that you get up from whatever you are doing and give your best. Thank you so much for it. So what's your name? Dilip Tiwari. In which exam have you been selected? SSC CGL and UPSI. अच्छा, तो क्या आपका एक मैसेज आएगा to the students who are preparing particularly at Mahindras?
मॉक दीजिए, जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है मैक्सिमम रिवाइज करिए उसको और अच्छे से तैयारी करिए और भरोसा रखिए खुद पे। अच्छा, क्या ऐसा है कि फेलियर से हो के ही सक्सेस मिलती है? तो मैं अपना बताना चाहूँगा, मेरा स्कोर फर्स्ट मॉक में 45 आउट ऑफ 200 था और लास्ट मॉक में जो मेरा CGL 2023 का प्री का स्कोर था 183 था, 183 आउट ऑफ 200, जिसमें मैथ से मेरा 50 आउट ऑफ 50 था। जबकि पहले जो मेरा 45 स्कोर था 200 में, तो मेरा 22 स्कोर था मैथ्स में। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए, आप वहाँ तक जरूर पहुँच जाएंगे। तो मैथ्स में आपने काफ़ी ज़्यादा गेन किया और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बहुत ज़्यादा फोबिया रहता है स्टूडेंट्स के अंदर, तो क्या विद डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन इसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है? तो ज़्यादा सोर्सेज ना लीजिए, जितने आपके पास मिनिमम सोर्सेज होंगे उतना कन्फ्यूजन कम होगा। प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, जो भी टीचर आप फॉलो कीजिए उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, आपकी मैथ्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। थैंक यू। मेरा नाम दीक्षा सिंह चंदेल है, मैं महिंद्रास की स्टूडेंट हूँ। आई हैव क्लियर्ड IBPS PO एंड आई हैव बीन अलॉटेड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। महिंद्रा ने मेरी सबसे ज़्यादा मदद सबसे इम्पॉर्टेंटली कंसिस्टेंट रहने में करी है। मेरी स्टडीज़ कंसिस्टेंट हो गई महिंद्रास आने की वजह से, एंड ऑल्सो मेरे सारे डाउट्स रिगार्डिंग स्पेशली रीजनिंग एंड मैथ्स वो भी मेरे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। सो इट्स अ बिग थैंक्स टू महिंद्रा। मेरा नाम उत्कर्ष पांडे है और मेरा सिलेक्शन IBPS PO में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है और इसमें महिंद्रा का काफ़ी सपोर्ट रहा है। बिकॉज बिफोर जॉइनिंग महिंद्रा कपूरथला ब्रांच, मैं महिंद्रा वाराणसी का एक स्टूडेंट था और महिंद्रा वाराणसी ने मुझे एक गाइडेंस दिया था, एक फाउंडेशन मेरा सेट किया था कि किस पाथ पे मुझे चलना है, और चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे करंट अफेयर्स हो या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो। बिकॉज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी और उस पर मुझे सबसे ज़्यादा काम करना था और इसलिए महिंद्रा ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है मेरे कॉन्ट्स को सुधारने में। और बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये मैसेज है कि कंसिस्टेंसी जो होता है वो सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर होता है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो फिर अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी तो फिर वो आपके सक्सेस को हैम्पर कर सकता है। तो आई थिंक आप जो भी प्रिपरेशन करें उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा मैसेज होगा जूनियर्स के लिए। थैंक यू सो मच। Hello, my name is Ashi Jaiswal and this year I have cleared IBPS PO and I got Central Bank and IBPS clerk in which I got Indian Bank. Mahindras helped me when there was a little time left and in that moment when you don't know how you have to cover things and कैसे क्या करना है, at that moment Mahindras came to my help and यहाँ पे मैंने इंटरव्यू के लिए as well as GA के लिए कैसे क्या प्रिपेयर करना है, हाउ टू आंसर एंड हाउ टू टैकल थिंग्स। सो दैट वाज द बेस्ट सपोर्ट आई हैव गॉट इन द लीस्ट टाइम दैट आई हैड विद मी। एंड द मैसेज टू ऑल द चिल्ड्रन आउट देयर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स इज कि बी कंसिस्टेंट। इट डजेंट मैटर लोग क्या कहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ यू यू आर लेफ्ट विद। आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है एंड दैट इज़ इट। थैंक यू। My name is Avantika Chaudhary and I have cleared IBPS Clerk 2024 examination this year and I have got Central Bank of India. Back in 2021 जब मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी बैंक की, पहला जो इंस्टीट्यूट मेरे दिमाग में आया दैट वाज महिंद्रास। एंड जैसे ही मैंने महिंद्रा कोचिंग ज्वाइन करी वहाँ पे सारे टीचर्स एवरीवन लाइक फॉर मैथमेटिक्स अंजन सर हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन क्लियरिंग माय बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स। English was my okay point and in reasoning Jay sir was there to clear each and every concept of reasoning and that is why I am here. So I would like to give my gratitude and give my thanks to everybody out there. The teachers, they are very helpful and for your banking preparation if you are going to अगर आपको कोई ऐसी कोचिंग चाहिए जिसमें आपको बेटर से बेटर बेस्ट प्रिपरेशन जहाँ से मिल सकती है वो है महिंद्रास, क्योंकि मेरी बहुत हेल्प की गई है वहाँ पे एंड आई हैव क्लियर द एग्जामिनेशन। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू दी टीम। थैंक यू। Hello, what's your name? Ritik Srivastava, ma'am. Okay, in which exam have you been selected? Ma'am, I have been selected in SBI PO, IBPS PO and FCAT. Okay, 3 exams you have qualified. So tell me something about Mahindras. What was Mahindras' contribution in your journey? Ma'am, basically the faculty was very supporting here. मैंने जितने भी इंग्लिश पढ़ी है सब महिंद्रा से सीखी है। The mock test, the STs are
helped me a lot. अच्छा, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा हाइप है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। बैकग्राउंड से अगर आप नहीं है तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्या अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से किया जाए तो बिल्कुल कॉन्कर कर सकते हैं या उसके बाद भी डिफ़िकल्टी रहेगी? मैम बिल्कुल अच्छे से कॉन्कर कर सकते हैं। मतलब अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, सबसे पहले ग्रामर प्रिपेयर कर लीजिए, प्रॉपर एसटी कीजिए, एरर डिटेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और वोकैब को डेली टाइम दीजिए। डेली 10 to 15 मिनट्स फॉर वोकैब फॉर ईच सेक्शन, लाइक सिनोनिम के लिए 10 to 15 मिनट्स, 50 वर्ड्स आज याद कर लिए, वो कल रिपीट कर लिए, 10 न्यू वर्ड्स याद कर लिए। अगर ऐसे प्रोसेस से करेंगे तो विद इन अ मंथ और 2 आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, और जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एसटीज होती हैं, स्पीचेस होते हैं, क्या उन्होंने आपकी हेल्प की थी प्रिपरेशन? मैम ऑनलाइन तो मैं दिया ही दिया हूँ, पर मैं ऑफलाइन में ज़्यादा फ़ायदा होता था। ऑफलाइन में लिस्ट लगती थी तो पता चलता था कि मेरे साथ वाला सेम ट्यूटर से पढ़ा है और कहाँ पे है, तो मैडम उसे कंपटीशन लेवल पता चलता था अपना। तो एसटीज़ ने तो काफ़ी हेल्प की है, सारा सिलेक्शन एसटीज़ का ही है। ओके, और क्या मैसेज रहेगा आपका उन स्टूडेंट्स को, उन एस्पिरेंट्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन? मैम पहले तो बिल्कुल भी आसानी से मत लीजिए, इसको टाइम दीजिए। अगर आपको सर्विस चाहिए, किसी भी सेक्टर में सर्व करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। 5 to 6 आवर्स, ज़रूरत पड़े तो 10 to 12 भी दीजिए। मैंने भी अपने मेंस के टाइम पे 2 फंस गए थे तो दिया था। और सर मैम सेकंड ऑप्शन जो करते हैं वो मॉक देर से शुरू करते हैं, मॉक पहले दीजिए। आप एनालाइज करते रहिए और सबसे ज़्यादा होता है मॉक एनालिसिस में आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है। अगर वो 90 परसेंटाइल से एबव है तो आप बिल्कुल कर जाएंगे वो एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभय है और मैंने महिंद्रा 2022 में ज्वाइन करी थी। मैंने 2 बैच बैंकिंग के ज्वाइन करे थे और इस साल मेरा बैंकिंग में सिलेक्शन हुआ है। IBPS PO में इंडियन ओवरसीज़ बैंक अलॉट हुआ है और मुझे लगभग ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गया पूरा तैयारी करने में और एग्ज़ाम निकालने में। तो स्टार्टिंग के 2022 में मैंने जितना करा था महिंद्रा से ही करा था। सारे जो थे मॉक होते हैं, सैटरडे को जो मॉक होते हैं सारे मैंने मॉक दिए और महिंद्रा की जो बुक्स मिलती हैं वो बुक भी होती है, वो लगभग उसके सारे क्वेश्चंस लगा डाले। तो वो महिंद्रा की जितनी बुक्स थी वो बुक्स लगाई और बाकी ऑनलाइन टेस्ट भी दिए जो होते हैं। और मैंने 2 बैच करे और उसमें काफ़ी टीचर्स थे, जैसे कि शिवा सर और भी GK पढ़ाते हैं अर्पित सर, और इंग्लिश के विपुल सर, काफ़ी टीचर से काफ़ी हेल्प रहा। और रीजनिंग में पूजा मैम का काफ़ी हेल्प रहा, तो इस वजह से। और मैं क्लासेस करता था उसका काफ़ी हेल्प रहा। तो मैं और फ्यूचर फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी करूँगा। और मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम्स में IBPS क्लरिकल, RRB क्लरिकल और SBI PO क्लियर करा हुआ है। और मैंने महिंद्रास का मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करा था, उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। उन्होंने मेरे वीक पॉइंट्स को एनालाइज करके मेरी वीकनेस को बताया था, जिसको मैंने और इम्प्रूव करा था। और मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बस यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स का लेवल के अकॉर्डिंग अपने प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को और हायर लेवल के लिए हमेशा रेडी रहें। Hello, what's your name? I'm Mohammad Javed Ashraf. Okay, Javed, in which exam have you been selected? I've been selected in UP Police SI Sub-Inspector exam. Okay, so what was the contribution of Mahindra's in your journey? I believe there was 100% contribution from Mahindra, and they have all, they have just guided me and thoroughly. And one thing that I required was guidance, because I wasn't aware of the pattern of the exams and all in that. But the way that teachers have guided me, especially the maths teacher, that is Vijay sir and other faculty, and they are commendable. ओके, सो स्पीड टेस्ट जो होते हैं, मॉक टेस्ट जिन्हें हम कह सकते हैं, कैसा पैटर्न रहता है, क्या लेवल रहता है? मैम, वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैपन्स एवरी वीक, and just trying to score good in those exams will help you and boost your morale also in the main exam. And I guess that is one thing that every student should keep in mind, that these are the only exams which are preparing us exactly for the main exam. So I will say that those exams are 100% very important for everybody. They shouldn't skip, and the level of the exam is when I started giving my first exam, my rank was way below, but gradually after giving 2 or 3 exams, I
improved and moved towards the higher side. So that helped me a lot. Okay, best of luck for your future and thank you so much. Thank you.